सी फैशन कम्स अलॉन्ग विद फिटनेस. इफ यू आर फिट इनफ यू कैन वेयर एनीथिंग, राइट. आप अपने फैशन चॉइसेस अपने फिटनेस के हिसाब से चूज करते हो. सो देर आर ऑल इंटरकनेक्टेड. फैशन, if you want to keep it nice, comfortable, everything for you, you need to be fit. If we want a glowing skin, like काफ़ी लोगों के questions होते हैं कि उन्हें glowing healthy skin चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? I think glowing skin comes with your sleep also. Sleep is non-negotiable. They should have antioxidants in their diet like berries and dry fruits. तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो हम नहीं सोचते, is your gut. आपकी गट आपकी स्किन से डायरेक्टली कनेक्टेड है. आपके पिंपल्स, आपके अजीब से रैशेस और योर फ्लेकीनेस, ठीक है. तो हम जितना गट पे क्लीन फूड रखेंगे ना, चाहे वो वाटर पे आप जो भी वाटर में ऐड कर रहे हो, कोलेजन ऐड कर रहे हो, whatever you are doing, that is very important because skin glow is directly connected to what you're eating. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए. हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional physician and a diabetologist. So let's welcome our honor of guest, Dr. Tanu. Hi, thank you Niharika from having me here and having a conversation that is much needed right now. Because India is on a very good trajectory right now. Right. Millennials, Gen Z Beta, Alpha, whatever we call them, and they're all getting better on nutrition, and we need to emphasize it more. Exactly. So it was a very good session with you, and I'm looking forward to having many more sessions and having a panel discussion with all of my doctor friends and my doctor clan of my brand. Thank you so much. Thanks. So Dr. Tanu, firstly I would like to know about your journey. Like आप एक physician और एक diabetologist कैसे बने? So obviously childhood से I was very sharp in studies. I was a scholar. So my dream was to become a doctor, कि मुझे डॉक्टर बनना है. Marks अच्छे आ गए. Then I got into med school. Medical school के बाद फिर मैं US चली गई 2 साल के. I did my work, research, observership there. Came back to India. I went to Mumbai for my higher studies. Then came back to Delhi, started working again in the hospital, and then understanding patient, world, everything. Right. COVID was a time when I was literally hit that we are not working very well on a preventive health kind of a segment all throughout, whether it's supplement or clinics. So many things are not yet done, and we are not ready to be in a world where COVID can come and thrash you up. Exactly. आपकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय करके चला गया. वो किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गए, उसके बाद किसी की हार्ट प्रॉब्लम थी, किसी को नी में प्रॉब्लम हो गई, किसी का हिप खराब हो गया स्टेरॉइड की वजह से. कितने सारे लोग हैं जो अभी तक भी डिसेबल्ड हैं आफ्टर कोविड. Right. सो इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल दैट आई कैन बी मोर ऑफ दिस. पोस्ट कोविड जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल हुई, I started with my own company. I started thinking what supplements I want to make, what I can do better as a doctor, because अगर डॉक्टर ऐसे ब्रांच में आ जाएगा तो वो कुछ अच्छा ही करेगा. मतलब नॉलेज भी है, एथिकल भी है, you know how to even make it better and better. बॉडी को क्या सूट करता है. एंड वी आर नॉट अ ब्रांड जो 100 चीज़ें एक चीज़ में डाल देगा. नहीं, वी आर वेरी क्लीन लेवल. जो लगता है कि जिसका जो काम है बॉडी में, जो हम बना रहे हैं सप्लीमेंट, बस वही होना चाहिए. ज़्यादा मिक्सिंग इज़ नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी इवन ऑफ द प्रोडक्ट. Exactly. सो वी थॉट दैट एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी. इंटरनेशनली बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला. दुबई, मतलब GTC लाइक मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, एंड इंडिया में मैंने स्टार्ट किया अप्रैल में. सारे हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. एंड नाउ वी आर बिल्डिंग अप. वी आर डूइंग इनटू इनोवेटिव स्टफ. वी आर गेटिंग इनटू अ सेगमेंट लाइक अ प्रोटीन वाटर. न्यूट्रिशन की तो इंडिया में इतनी कमी है, आपको पता है, और प्रोटीन की. और वो प्रोटीन के डब्बे नहीं पी पाते लोग. इट्स टफ. इफ देयर इज अ बेवरेज व्हिच इज एज फ्रेश ना, आई थिंक आई वुड ड्रिंक दैट, एंड आई एम ड्रिंकिंग दैट एवरी डे. Exactly. So I am coming up with new things in India and also world.
where we do something that is more nutritious and more better for the community. Right, that's great. So journey has been good, fulfilling, met many people, meeting many people every day, and I'm glad that I started my journey on this. Perfect. सो डॉक्टर तनु, इफ़ वी स्पीक अबाउट डायबिटीज़, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स आते हैं, अपना ज्ञान सब देते हैं वहाँ पे. सो आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है, और अगर आप उसको ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या होगा? आई थिंक डायबिटिक्स के ना बहुत सारे मिथ हैं इंडिया में. एक तो लोग इंसुलिन से बहुत डरते हैं. करेक्ट. ठीक है, इंसुलिन देखो सिर्फ मैनेज करने के लिए होता है डायबिटीज़. अगर आपको एक्चुअली डायबिटीज़ को रिवर्स करना है या कंट्रोल करना है तो लाइफस्टाइल से ही खेलना पड़ेगा. दूसरी चीज़, लोगों को लगता है डायबिटिक जेनेटिक है. मेरे पापा को थी इसलिए मुझे हो गई. दे डू नॉट ब्लेम देमसेल्व्स कि वो लेट नाइट जगे हुए हैं, मिड नाइट खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है. सो आई फील रादर देन ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स, इंडिया शुड गो ऑन अ ट्रैजेक्टरी जहाँ आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो. खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम करते ही नहीं हैं. हम हिलते ही नहीं है. मूवमेंट नहीं करना इज एक्चुअली टर्निंग इनटू दैट. तो दैट्स अ बिगेस्ट मिथ कि जेनेटिक है. एंड दूसरा कि इंसुलिन ले नहीं ले वो एक प्रॉब्लम है. तीसरा, लोगों को फ्रूट्स लगता है कि हम फ्रूट नहीं खाएं, ये एक भी एक प्रॉब्लम है. सिर्फ फ्रूट बुरा नहीं है, मॉडरेशन में कुछ भी बुरा नहीं है. आप सोचो आप डायबिटिक हो, पूरे दिन फ्रूट पे रहोगे तो भी गलत है, क्योंकि वो आपको स्पाइक्स देते हैं शुगर के. तो यू हैव टू चूज योर फ्रूट वाइजली, लाइक एप्पल, गुआवा, बहुत मीठे आम वगैरह ये सब नहीं खा सकते आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कंटेंट ज़्यादा होता है. अदरवाइज फ्रूट लाइक एप्पल, दे गिव यू फाइबर, दे गिव यू न्यूट्रिशन, दे गिव यू विटामिन, दे गिव यू एंटीऑक्सीडेंट लाइक बेरीज जिनमें शुगर कम होती है. दे आर मच बेटर. सो आई ऑलवेज टेल पीपल डायबिटिक्स को भी कि फ्रूट तो खा लो मॉडरेशन में. मॉडरेशन में कुछ नहीं होगा. तो दैट इज द बिगेस्ट मिथ दे कैरी अपॉन, कैन वी ईट इट और कैन वी नॉट ईट इट. एग्जैक्टली. स्पेशली दूसरे लोग और क्या कहते हैं मुझे डायबिटीज़ में कि हम स्किप कर दें क्या मील्स, हम फैट डाइट पे चले जाए क्या. नहीं, नो, इट विल नॉट हेल्प यू. डायबिटीज़ को बिल्कुल सिंपल रखो. इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. आप जल्दी सोओगे, आप अच्छा वर्कआउट करोगे, आप खाने के बाद वॉक करोगे, खाने में प्रोटीन, फाइबर, इनको इम्पोर्टेंस दोगे, राइट, तो इट्स ऑल ओके. आप फैट डाइट में सोचो कि मैं कीटोन डाइट कर लूँ, मैं पूरे दिन लिक्विड पे रह लूँ, आपको डेफिशिएंसीज हो जाएंगी विटामिन की बहुत सारी, और बॉडी भी अजीब सी ना, एनर्जी नहीं रहेगी, आप काम भी नहीं कर पाओगे, एंड आपको रीगेन होगा वेट. 2-3 साल 1 साल निकाल दोगे किसी तरह डाइट करके. बट क्या वो मॉडरेशन है? नहीं, वो मॉडरेशन नहीं है. you'll again come back to your own again weight, और वो लड़ाई आपकी चलती ही रहेगी. इसलिए डायबिटिक्स इंडिया में नहीं इम्प्रूव करते, क्योंकि डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है. डिकोडिंग तो ईजी है कि जो करना है मॉडरेशन में करना है और डेली करना है. ऐसा नहीं है कि आज मैं उठी और मुझे लगा मैं 1 महीने डाइट कर लूँ, फिर मैं दोबारा से डेजर्ट्स पे, बेकिंग प्रोडक्ट्स पे और प्रोसेस फूड पे फिर से आ गई. तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अ प्रोसेस. करेक्ट. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर हमें फैशन और फिटनेस दोनों को एक साथ मेंटेन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सी, फैशन कम्स अलॉन्ग विद फिटनेस. इफ़ यू आर फिट इनफ यू कैन वेयर एनीथिंग, राइट. आप अपने फैशन चॉइसेस अपने फिटनेस के हिसाब से चूज़ करते हो. फिर फिट इनफ, योर बॉडी इज़ गुड, योर वर्किंग आउट, है ना. आपका सी जितना आपका डायबिटीज़ या और आपको एंडोक्रिनोलॉजी में या कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, योर बॉडी विल स्मेल because of the high cortisol. You will have a very bad abdomen. तो फिर वो fashion. So they are all interconnected. Fashion, if you want to keep it nice, comfortable, everything for you, you need to be fit. But there are always, जैसे कहते हैं ना, skin brain axis होता है, gut brain axis होता है. I'll tell you all about that. Right. But ऐसे ही fashion fitness is so much connected. If I am fit, I can wear anything in fashion. I can flaunt anything in fashion. So fashion is a statement where you flaunt about how you can carry your body well. Definitely. I'm not saying plus sizes लोग गलत हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ. ओबेसिटी इंडिया में आज एक बहुत बड़ा डिजीज़ है. अपने प्लस साइज को एक्सेप्ट मत करो कि हाँ प्लस साइज के कपड़े आते हैं, जो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. ट्राई कि आप छोटे शॉर्ट टर्म चीज़ों पे मत जाओ, जैसे मुंजारो या ओजेम्पिक हम लोगों ने ले लिया है. सी, मुंजारो केम हियर ओनली फॉर वन रीज़न कि अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है, आप एजेड हो, आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी नीज खराब है, तो आप एक प्रोडक्ट की सहायता से यू डू इट. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब मुंजारों से पतले हो जाओगे और यंग लोग अब सोचें कि हम ये तो शॉर्टकट मिल गया है, अब हम लाइफस्टाइल क्यों चेंज करें, अब हम अपने आप को माइंड क्यों चेंज करें, हम तो ये ले लेंगे, क्विक फिक्स है.
So this is Right. not a quick fix for you. Yeah, exactly. So Dr. Tanu, if I'd ask you, like एक healthy diet होती है, एक fancy diet होती है, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर अभी आप कीटो डाइट के बारे में बात Yes, करते थे, yes. like intermittent fasting भी होती है. So आपको क्या लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? See, intermittent fasting अच्छी है. हमारी बॉडी में ना कुछ सिग्नल्स होते हैं, mTOR पाथवे एक प्रॉपर. Intermittent fasting में कोई प्रॉब्लम नहीं है. As you know, your diet, you're good on protein, you're hydrating yourself, you're eating your fibers very well. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो कहती हूँ 6-7 बजे के बाद मत खाओ. Give your gut some rest. उसको रेस्ट करने दो, उसको रीसेट होने दो, तब गट प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे और आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी. इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉब्लम नहीं है. फैंसी डाइट्स में एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, विटामिन की बहुत भारी डिफिशिएंसी हो सकती है. कीप योर सेल्फ ऑन सप्लीमेंट्स इफ़ यूर ऑन फैंसी डाइट्स. आपका कोई मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है या मॉडल हो, या यू हैव सम डिजिटल करियर वेर यू वांट टू बी फिट एंड यू कांट अफोर्ड टू ईट अ प्रॉपर डाइट. बट एनी डे आई वुड एडवाइज पीपल दाल चावल, ऑल दोज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, दाल चावल, आपकी रोटी, जो भी आपको रागी पसंद है, जवार पसंद है, आपकी बॉडी में क्या अच्छा चल रहा है, आपको क्या सूट करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मत छोड़ो. राइट. हम ना ये भूल जाते हैं फैट डाइट्स में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या वैल्यू है बॉडी में, उसको मत छोड़ो. अदरवाइज यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओके. आई ऑल्सो डू दैट. आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग आफ्टर 7 PM ओके. जस्ट टू कीप माई सेल्फ रेस्टेड. डाइजेशन अच्छे से रहता है एंड आई एम लाइक वेरी एक्टिव इन द मॉर्निंग. बट मैं हाइड्रेट करती रहती हूँ. मैं ये नहीं भूलती हूँ कि मुझे अगर आपने कोलेजन पीना है तो कोलेजन नहीं पीऊँगी. आई कीप हाइड्रेटिंग माई सेल्फ. ओके, दैट्स मेरे ग्रेट. फाइबर डाइट कम नहीं होती है. एंड दिस इज हाउ आई थिंक दिस यू कैन मेंटेन योर सेल्फ वेल. Correct. So you are saying that we should also avoid supplements. We should take supplements. I Okay. never tell people to avoid supplements. Only one reason for that. See, आप डाइट में सब कुछ नहीं खा पाते हो और नहीं खा सकते हो. You and me, we are working, we are very busy, we have schedules to do. हम सब, कई लोग तो अकेले रह रहे हैं, किसी के तो पेरेंट्स साथ नहीं रह रहे, किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि ये ABCD हम सब बना लें और खा लें. सप्लीमेंट आपको हेल्प करने आता है, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लो. अपनी डाइट को, सप्लीमेंट को मत समझो कि वो तुम्हारी डाइट है. यंग बच्चे सोचते हैं कि सप्लीमेंट पे रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे. Correct. वो गलत है. ऐसा मत करो. डाइट भी रखो. सप्लीमेंट एडजुवेंट है आपकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट और आपको हेल्प आउट करने के लिए, Yeah. है ना. विटामिन डी नॉन नेगोशिएबल है. लेना ही लेना है. B12 लेना ही लेना है. Exactly. आयरन लड़कियों को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इन देयर मेंस्ट्रुएटिंग फेज, इन देयर प्रेगनेंसी फेज, फोलिक एसिड. Yeah. ठीक है, आपके B12 लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लोग कहते हैं एनर्जी कम है, तो B12 लेवल्स अभी समझो ना. B12 लेवल्स, अगर आप B12 का कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप वेजिटेरियन और हो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बॉडी में. है ना. Exactly. आपके पास टाइम भी नहीं है, आप खाना भी बस जो मिल रहा है वो खा रहे हो उठाकर, कॉर्पोरेट जॉब में हो. बिटवीन B12 लेवल्स कैसे ठीक करोगे? तो लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट. दीज आर समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल. यू कांट exactly. रियली स्किप देम. एज मच एज आई टेल, जितना आपको पानी की कंटेंट चाहिए ना, आप अलग अलग चीज़ों में पियो. Definitely. दिस इज व्हाट आई फील. एंड सप्लीमेंट्स अपने लिए कैसे ऐड कर सकते हो? और जैसे कि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत धूप है. ग्लूटाथायोन क्यों लेते हैं लोग? एक तो लिवर डिटॉक्स तो करता ही है, प्लस वो आपको ऑक्सीडेशन से बचाता है. जो सन से आपको इतना गंदा UV रेज मिलते हैं ना, Yeah. उससे भी बचाता है. सनस्क्रीन तो ऊपर लगी हुई है ना, यहाँ से बैरियर करिए. जो रेज अंदर घुस रही हैं उनका क्या करोगे? को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना. सो दिस काइंड ऑफ स्टफ. फिर ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं बोलूँगी तो लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा. स्पर्मिडिन, वेरी गुड सप्लीमेंट विच गिव्स यू पावर, एनर्जी. सी, एवरी डे व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर गोइंग आउट, यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट गेटिंग रिपेयर्ड. आपकी बॉडी के सेल्स मरते रहते हैं, है ना. उनको भी एक रिपेयरमेंट चाहिए होती है. Right. तो वो सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है. जैसे एस्ट्राजेंथिन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है. यूबिक्विनोल बहुत अच्छा सप्लीमेंट है फॉर योर रीजनरेशन ऑफ द बॉडी. Okay. कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो नॉन नेगोशिएबल है, आपको लेने चाहिए. आप ऐसा सोचो कि आप कैफीन पे सिर्फ डिपेंडेंट रह सकते हो फॉर योर एनर्जी. आई डोंट थिंक सो. दैट्स अ गुड आइडिया. Right. So do you think कि कैफीन जो हमारे लिए हेल्थ के लिए मतलब सही रहता है? See, I'm not denying your coffees. I mean, have your coffees. I'm not saying don't have it. First thing in the morning, complete no. Okay. Please don't take it first thing. आपका पूरा पेट खराब होता है. इतनी यंग लड़कियां, इतने लोग आते हैं गट हेल्थ के इश्यूज से, सब कॉफ़ी नहीं किया होता है. इन द मॉर्निंग बहुत सारा पानी. सेकेंड, सोक ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड्स, detox your body. Then have a coffee with whatever food you're taking. Add an MCT oil to it.
so the good fat should go in. Yeah. And caffeine is not your fixation or your fix for energy. Please try to understand. एनर्जी किससे मिलेगी? B12 से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी, पानी से मिलेगी, Yeah. पानी में जो भी डालोगे, आपको फाइबर से मिलेगी. ये आपको एनर्जी देते रहते हैं बॉडी में. Correct. कैफीन से एनर्जी नहीं मिलती कभी भी. कैफीन से आप एडिक्टेड हो बस, इसीलिए आप कैफीन को ले रहे हो. Exactly. मैं 15 ईयर से कैफीन पे बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है. Wow. आई डोंट हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक ओ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है. जो पीते हैं वो गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट देन लुक आउट फॉर योर गट हेल्थ. लुक आउट फॉर द ऑप्शन वेर यू टेल मी कि मैम मैं 10 कॉफ़ी पी लेता हूँ दिन में. 10 कॉफ़ीज अ डे इज़ अ नंबर. वॉट यूर डूइंग टू योर गट. हम जो खा रहे हैं वही दिख रहा है. Correct. कैफीन एक स्मॉल अमाउंट में ना अच्छा है, एंटी एजिंग भी है वो. स्मॉल अमाउंट में, मॉडरेशन में, नॉट इन अमाउंट दैट वी आर टेकिंग टुडे, जिससे आपको इतनी एसिडिटी हो रही है और जितने इतने गट इश्यूज हो रहे हैं. एंड इट इज़ नॉट गिविंग यू एनर्जी, इट इज़ डिहाइड्रेटिंग यू. इफ यू हाइड्रेट योर सेल्फ, बॉडी इज एनर्जेटिक. यू आर डिहाइड्रेटिंग. अगर जितनी बार कॉफ़ी पीते हो उतनी बार एक बॉटल पानी पी लोगे ना, it'll be much better. Exactly. This is what I feel. This is what I feel and this is what science is telling. I'm not saying all these things. ये सारे Cochrane reviews हो चुके हैं, इतने सारे publish हो चुकी हैं चीज़ें, and these are reviews. I can send you all the reviews. You can publish on your website or on your channels. Yeah. Because people should know what they're taking in their body. True. So, Dr. Tanu, you have launched this brand called Agua Fuel, right? So, can you tell us something about it? So I feel India में protein deficiency is very bad and it's across all the ages. I'm not saying बड़ों को हो, बच्चों को है, सबको है. और प्रोटीन के ना बहुत सारे ऑप्शंस कम है. आप सोचो आप दाल में इतना प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा यार आपको इतना प्रोटीन. इतनी कुकिंग के बाद वो नहीं बचता है. एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ प्रोटीन विच बिल्ड्स यू अप. बिल्डिंग ज़रूरी है ना. हम अब वो वाला इंडिया नहीं है, अब हम एक और स्मार्ट इंडिया बनते जा रहे हैं. वी आर चेंजिंग. The economy is boosting. We're doing so many new startups, enterprises. Our kids are not the same kids as we were. They're so different. The generation is just climbing up. And why are we not climbing up on nutrition? अभी भी तो वही पुरानी बातें करते हो. दाल खा लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे जो मैदा की बनी हुई है. मतलब इट्स हिलेरियस राइट कि हम बाकी चीज़ों में कितने अप हो गए, फैशन में, मेकअप में, गैजेट्स में, लेकिन न्यूट्रिशन में आज भी वही बातें कर रहे हैं पुरानी कि इसको पीसेंगे और बनाने. अरे कौन पीस रहा है और कौन खा रहा है? आई डोंट सी एनीवन डूइंग दैट. एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द इंडिया इज सो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट एंड दे डोंट हैव प्रोटीन्स. एंड दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि वी कैन स्पेंड ऑन 300 रुपीज़ कॉफी बिकॉज दैट्स स्टारबक्स एंड वी वांट टू फ्लॉन्ट इट एंड ऑल दैट. बट व्हाई डोंट यू स्पेंड योर सेल्फ योर मनी ऑन न्यूट्रिशन? वो ज़्यादा ज़रूरी है ना. सो आई केम अप विद द आइडिया कि पानी में क्यों नहीं प्रोटीन हो सकता है. मेक इट लाइक अ बेवरेज ना. आज जितनी भी बेवरेजेस है मार्केट में, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न्यूट्रिशन देता है. मीठा देता है, वो चीनी है, कलर है उसमें, थोड़ा बहुत कैफीन डाला है या कुछ और डाला है जिससे एनर्जी आ गई होगी. मीठे से बहुत एनर्जी आती है, वैसे तो शुगर रश होता है. इसमें ना तो मीठा है, ना तो इसमें ऐसा कोई कलर है, एकदम क्लियर है. ठीक है. इसमें सिर्फ फ्लेवर है जो रियल फ्लेवर रियल फ्रूट का है. इसमें एज अ बेवरेज बहुत अच्छा प्रोटीन हमने डाला है, हमने फाइबर डाला है जिससे आपको न्यूट्रिशन बिल्डअप हो, आपका गट बिल्डअप हो. सो इंडिया में ऐसे इनोवेशन की और ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत है. मी बीइंग अ डॉक्टर, आई वांटेड टू डू दिस एंड आई एम डूइंग इट. Perfect. So, do you have a website for this? It's going to be everything. Yeah, we are launching everything. In just 1 week, we're going to be alive in India with all the websites and all the offers, everything. Perfect. So, Dr. Tanu, your another brand is called Peachx, right? Thank so, you. आप इसके बारे में बता सकते हैं please हमें? Yes, Peachx came into life with the thinking how people can connect to us. It's like Peachx, it's people and each one of them in our journey of bringing up nutraceuticals, nutrition, supplements that are actually useful. Right. कोलाजन के बारे में मैं डेली कुछ ना कुछ सुनती हूँ on website, on internet. See, I don't know. We spend our whole lot of money on beverages and slushes, iced teas and coffees which are just not giving you anything. Correct. At least ये 100 रुपये आप जब अपने ऊपर खर्च करते हो, ये आपको प्रोटीन देता है, या आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है क्योंकि हमारी लाइनिंग कोलाजन से बनी है. इट गिव्स यू इनर न्यूट्रिशन ग्लो. मुझे समझ नहीं आता है लोग इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं टू थिंग्स लाइक दोज ना कि ये बड़ा हाइप है, ये बड़ा ही महंगा है. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट बिकॉज द इंडिया दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, ब्लू टोकाई से लेके इन ऑल द कॉफी हाउसेज, यू आर बाइंग सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड आर दे गिविंग यू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम शुगर? So this does not, I'll show you. So on the label it is there, this does not have any sugar. Okay. What it has is zinc,
vitamin C, which is very important for your gut, and collagen, which is also Japanese collagen, the best collagen in the world is all Japanese collagen. And what else you want in life? मुझे नहीं लगता कि आप 4 लीटर पानी पी सकते हो. अच्छा, अगर पानी में कुछ रिफ्रेशिंग डाला आपने, जिससे आपको प्रोटीन भी मिला, आपको बॉडी में अच्छा रिफ्रेशमेंट, कुछ फ्लेवर मिला जिसमें मीठा भी नहीं था, तो क्या बुराई है? तो दिस इज व्हाट आई रियली फील. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? एग्जैक्टली. सो डॉक्टर तनु, इफ़ वी वांट अ ग्लोइंग स्किन, लाइक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें ग्लोइंग हेल्दी स्किन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? I think glowing skin comes with your sleep also. Sleep is non-negotiable. They should have antioxidants in their diet like berries and dry fruits. तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो हम नहीं सोचते, इज़ योर गट. आपकी गट आपकी स्किन से डायरेक्टली कनेक्टेड है. आपके पिंपल्स, आपके अजीब से रैशेस और योर फ्लेकीनेस, ठीक है? तो हम जितना गट पे क्लीन फूड रखेंगे ना, चाहे वो वाटर पे, आप जो भी वाटर में ऐड कर रहे हो, कोलेजन ऐड कर रहे हो, whatever you are doing, that is very important, because skin glow is directly connected to what you're eating. Correct. Because your gut is going to get cleansed and you look more glowy. And I think skin glow के लिए सबसे important है, आप barrier creams लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, आप अपना sunscreen लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो. That's very important. So I think sleep, your creams that protect you from the sun damage, your drinks with collagen or whatever you like to have for your gut, and clean gut health. That's very important. So these are non-negotiable if you want a good skin glow. And I think aesthetic procedures मुझे बुरे नहीं लगते. I also feel कि you should look best in your age. Correct. If it is coming up with something, some hydration, some boosters, why don't you take it? You also buy bags, na? You also buy clothes, and you also travel and spend money. Exactly. So spending money on body क्या issue है? True. So I think aesthetic centers are doing quite well in India, and I see there is a lot to do. And I think if you need a good skin glow, go there. They are the best people to give you the best things. Perfect. एंड ऑल्सो डॉक्टर तनु, अगर हमें अपने हेल्थ को और अपने करियर दोनों को एक साथ बैलेंस करना है, सो हाउ कैन वी डू इट? आई थिंक जितने भी करियर ओरिएंटेड लोग हैं, उनको एक दिन तो अपने रिफ्लेक्शन रखना चाहिए, वेयर दे थिंक व्हाट दे आर डूइंग, if they're doing right or not, and what kind of people are they working with. And कुछ आवर्स के लिए मेडिटेशन कर लो, ऑफ फोन चले जाओ, थोड़ा सा अपने माइंड को रीसेट करने के लिए. बिकॉज क्या होता है ना, एक ही चीज़ सेम चीज़ आप जब करते रहते हो ना, आप बोर हो जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी डेड हो जाती है. कहते हैं ना हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिजनेस में स्टक हो गए, नेक्स्ट क्या करना है, तो टेक दोज ट्रिप्स, टेक दोज I mean, go alone on a trip, or maybe go with family, go with your friends that you know, or your tribe, and do those activities that are needed. Right. Very important. Second is sleep. अगर आपको हेल्थ को बैलेंस करना है करियर से, मतलब 100 करोड़ का कंपनी बना लिया, लेकिन रात में सोते नहीं हो, हार्ट हेल्थ खराब कर रहे हो, मरने की वाले कगार पर हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, डू नो यूज ऑफ दोज 100 crores, because you're not going to use them. So basically sleep. Third is healthy eating. I always say, आप एंटरप्रेन्योर हो, give yourself that kind of leverage कि आपके लिए लोग हैं, कि वो आपके लिए बना रहे हैं, आप ले रहे हो. बहुत सारे आजकल किचन्स हैं ना, वो गिविंग यू हेल्दी स्टफ, हेल्दी फूड. इतने ब्रांड्स आ गए हैं जो आपको हेल्दी फूड दे देते हैं. सो हेल्थ एंड करियर कैन ओनली बी बैलेंस्ड इफ यू हैव गुड स्लीप, good time to reflect and meditate, and change your surroundings in between. And दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि when you're high on your career, you need to be stay grounded, stay calm, stay composed, do deep breathing exercises, जिससे cortisol कम होगा. cortisol कम कैफीन से नहीं होगा, cortisol कम होगा deep breathing exercises से, meditate करने से. Having those happy moments will give you happy hormones. That's something that I would say. And yes, exercise, please. Exercise is non-negotiable in your health and career. If you're moving well, you're devoid of diseases, and you're not hospitalized. तो आपके जो वो हॉस्पिटल में और जो बीमार होने में जो दिन वेस्ट होते हैं ना, वो आप वैसे यूज कर सकते हैं. I hope you guys like this video, and if you want to consult with Dr. Tanu, so her details are given on the screen, so make sure to contact her. Thank you so much.